Okay. So today, yesterday, what we have studied, हमने कल क्या पढ़ा था? Yes, electrophile. Firstly, I told you about what is a reaction. रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है, दो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट दो रिएक्टेंट तो होने चाहिए, दो मॉलिक्यूल तो होने चाहिए एटलीस्ट. तो देन रिएक्टेंट में आपको बताया था मैंने, एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है. नाउ हाउ विल यू डिसाइड व्हाट इज सबस्ट्रेट, व्हाट इज रिएजेंट? दैट आई हैव टोल्ड यू. सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, राइट? देन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्पीसीज में हाउ विल यू डिटरमाइन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट? देन इफ बोथ स्पीसीज आर ऑर्गेनिक, then how will you determine? then with then after that, what is a reagent? Reagent two types के होते हैं, electrophile, nucleophile. Then I told you about electrophile. We made a whole list. Almost 70 to 80% हम लोग ने electrophiles कल पढ़े थे, right? उसमें firstly I told you about electrophiles are mostly they are positive charge species, but all positive charge species are not electrophile, right? उसका I have given examples also. After that, neutral charge, neutral species. In neutral species we have done having vacant d orbital, those species having vacant d orbital, having vacant p orbital, right? Having low line sigma star molecular orbital, right? So if you have any doubt from the last class, you can ask. If anyone have any doubt related to electrophile, can ask. No doubt. 5 classes we have studied in neutral molecule, having species having vacant d orbital, species having vacant p orbitals, species having low lying sigma star molecular orbital, and pi bonded molecules. Pi bonded molecules having difference in their electronegativity. And last we studied about atoms in their atomic state. In that I gave you example about ozone, right? O2 plus O. Here O जो atom that behaves as electrophile. So 5 examples I gave in this neutral type of electrophile molecules, right? If anyone have any doubt, can ask. Otherwise, we will proceed further. Yes. Proceed करें आगे? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So nucleophiles. Today, firstly, nucleophiles. Yesterday I told you about what are nucleophiles, right? Nucleus loving. Nucleo means nucleus. Nucleus. Philes means loving. Phylus. This is a Greek word. Nucleophile, Greek word. Nucleo means nucleus. Philes means the nucleus loving species, right? Means nucleus loving species means these are negatively charged. Mostly they are negatively charged. Means they have higher electron density. So they will attack at electron deficient site. They will attack at electron deficient site. One more thing I told you yesterday also. One more thing. They act as Lewis base. They act as. अभी तक रिक्वेस्ट आ रही है, आप लोग ज्वाइन प्लीज ज्वाइन टाइम से किया करो आप लोग. अभी तक सब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. विजय पदियार. Okay. So yesterday I told you about electrophile behave as Lewis acid and nucleophiles behave as Lewis base, right? Lewis base क्यों? Because they are electron pair donor. Electron pair donor, right? अब देखो न्यूक्लियोफाइल्स की क्लासिफिकेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स 4 टाइप्स के पढ़ते हैं. 4 टाइप्स बेसिकली. फर्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज. फर्स्ट इज देखो आफ्टर 10 मिनट्स आई विल नॉट एडमिट एनीवन. 10 मिनट्स तक आप लोग आ जाया करो, उसके बाद क्लास बीच में डिस्टर्ब होती है. ओके. न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट क्लास इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज. नेगेटिव चार्ज स्पीसीज. नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम लोग. सेकंड इज पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. देखो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हमने इलेक्ट्रोफाइल्स में भी पढ़े थे पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. पाई में पढ़े थे, बट दे वर हैविंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था. मींस एक्स और वाई है. फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है. आई थिंक विजिबल नहीं हो रहा आपको ना. इट्स नॉट विजिबल.
Yes, whiteboard is visible. Yes. आपको दिख रहे हैं 500 molecules are visible to you? 500 molecules. No. Yes. Okay. Because first is negative charge species. First is negative charge species. Second is your 500 molecule. 500 molecule. कुछ नहीं दिख रहा है. Second is your 500 molecule. 500. Molecules. Right. Third classification. Third. Species having lone pair. Lone pair. Right. Next is organometallic reagent. Organometallic reagent. I am telling about different classes of nucleophile. First, we will study about negative charge species. Second, we will study about 500 molecules. Third, we will study about species having lone pair, right? And fourth, we will study about organometallic reagent, right? Organometallic reagent. Okay. देखो negatively charged species के example देखो nucleophiles से you all are aware. Cl minus, right? Br minus. और बताओ I minus, OH minus. Yes, OR minus. और बताओ. Yes, SR minus. NH2 minus. NH2 minus. Yes, Chichi-Weber reaction. NH2 minus. NH2 minus. NH2 minus. Right. SH minus. एसिटेट आयन OAC माइनस एक्सेट्रा. जो आपको याद है आप ऐड कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट देखो OR माइनस और OAC एक ही चीज है, राइट. R की जगह एसिटेट ग्रुप है. अभिषेक. ओके. नेक्स्ट देखो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बहुत है. जो आपको याद है आप इस वाले टेबल में यू कैन एंटर. नेक्स्ट 500 molecules. 500 molecules we studied in electrophile also. Electrophile में 500 molecules में difference in electronegativity होता है. But here in nucleophile there is no difference in electronegativity, right? First alkenes. Second example alkyne. They all behave as nucleophile. कल मैंने बताया भी था about this alkene. This react with a bromine. You will get a bromonium complex. Bromine acts as a electrophile and this alkene acts as a nucleophile, right? Nucleophile. ठीक है. ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से शिफ्ट होती है आपके नेट में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. व्हेन यू गेट अ ब्रोमोनियम कॉम्प्लेक्स व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर? पाई टू सिग्मा स्टार. जो हमने भी दिखाया था आपको हाउ ब्रोमीन के अंदर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो लो लाइन होता है, सेकेंड होता है. तो इजीली वो जो अल्कीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेते हैं, राइट. तो अल्कीन हो गया, राइट. और एग्जांपल बेंजीन 500 है. बेंजीन. नेक्स्ट एग्जांपल और बताओ भाई. बेंजीन हो गया 500 मॉलिक्यूल्स. यस. और एग्जांपल कोई भी बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दो. फॉर एग्जांपल बेंजीन. फॉर एग्जांपल ये कोई बेंजीन है, इसके ऊपर कोई भी ग्रुप अगर मैं जोड़ देती हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एनी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक NR2, NH2, OH, OR,
ये सब these will give electronegativity to this benzene, so this will behave as a nucleophile. ये भी pi bonded molecules का एग्जांपल हो गया. और एग्जांपल अल्काइन, अल्काइन मैंने आपको बता दिया. कल देखो दिस वन, अगर ये सिंपल होता है इसको पाइप रीडिंग बोलते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूं will also behave as a nucleophile, right, due to this lone pair. Okay, और अगर if you this is alkene molecule, इसको मैं फ्रेम को क्लियर कर देती हूँ. मोर एग्जांपल देखो, और एग्जांपल्स देखो. दिस इज pi bonded molecule. This is your CH2 double bond CH. If there is a group attached, this will also behave as a nucleophile, right? These all are pi bonded molecules. Basically, you have to remember there should be no difference in electronegativity. अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हुआ, मान लो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ, मान लो X ग्रुप का कोई भी, तो ये X अपनी तरफ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ दिस विल नॉट बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट. बेसिकली मेन थिंग इज आपके जो बाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल उसमें डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आपका क्या होगा, इट विल बिहेव एज, राइट. नेक्स्ट देखो थर्ड क्लास स्पीशीज हैविंग लोन पेयर के तो बहुत एग्जांपल वो है, ROH है, ठीक है, इन सब में लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, राइट. और एग्जांपल्स H2S, राइट, NH3, और एग्जांपल yes alkylamine RNH2, yes these all are nucleophiles. और बताओ भाई RSH और एसिटिक एसिड CH3COH, this will also be nucleophile. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है. और बताओ स्पीशीज ROR, yes ROR, ईथर ग्रुप, ठीक है. तो नेक्स्ट आप इसमें एक्सेट्रा लिख लेना, आपको जो याद है आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट देखो स्पीशीज हैविंग मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, फॉर एग्जांपल विनार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, इसमें R जो होता है R माइनस होता है और ये जो MgX होता है डेल प्लस होता है, ठीक है. तो दिस इज योर R माइनस इज ए न्यूक्लियो, ठीक है. अल्काइल जो ग्रुप होता है दैट इज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट. में पढ़ाएंगे आपको कि R माइनस है कैसे अटैक करता है, किस जगह पे अटैक करता है, कैसे इसका बिहेवियर, दैट वी विल स्टडी इन फर्दर क्लासेस, राइट. तो दिस इज देयर Grignard reagent RMgX. नेक्स्ट इज RLI. व्हाट इज RLI? व्हाट इज द नेम ऑफ RLI? अल्काइल लिथियम, इसको बोलते हैं सुपर Grignard reagent. RLI is super Grignard reagent, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें भी R माइनस होता है न्यूक्लियोफाइल. नेक्स्ट एग्जांपल R2CuLi reagent गिलमान. देखो इनके जो कॉमन नेम है यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज कई बार क्या होता है you will not get the structure, you will get only the name. आपको नेम लिखा हो, कोई रिएक्शन लिखा प्लस गिलमान रिएजेंट, so you have to remember, आपको याद होना चाहिए what is a गिलमान रिएजेंट. so R2 is a गिलमान रिएजेंट. मोर एग्जांपल्स, और एग्जांपल देखो इसके R2ZN alkyl zinc, this is also example of organometallic compound R2ZN. और देखो और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल R2CD dialkyl cadmium, this is also an organometallic reagent having nucleophile. This groups R minus is a nucleophile. सब में क्या है, जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो क्या है. और एग्जांपल इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो, R2CD हो गया, RLI हो गया, R2ZN डाइअल्काइल जिंक, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट हो गया, Grignard रिएजेंट हो गया, सुपर Grignard गिलमान, और जो आपको याद है आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, राइट. तो ये आपके बेसिक मैंने आपको ये बता दिया कि आपका न्यूक्लियोफाइल की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं. एक स्पीशीज हैविंग, मैंने आपको बताया स्पीशीज हैविंग पाई बॉन्डेड, थर्ड मैंने आपको बताया ऑर्गेनोमेटेलिक, और लास्ट सबसे पहले जो स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज स्पीशीज. जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी डेफिनेटली इट नेगेटिव मींस उसके पास इलेक्ट्रोडेंसिटी ज्यादा है. नेगेटिव क्या है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सो इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब देखो एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ रिलेटेड टू ऑर्गेनिक। देखो तो एलडीए आपने नाम सुना, एलडीए सबने सुना है। एलडीए, व्हाट इज एलडीए? लिथियम डाई अमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये अमाइड ग्रुप है, इस प्रोपाइल मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो लिथियम पे प्लस आ जाएगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव, राइट। ये स्ट्रक्चर होते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है। तो अब देखो दिस इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इट शुड बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना चाहिए, बट इट विल नॉट एक्ट, इट इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, नॉन न्यूक्लियोफिलिक। तो एक्ट करेगा, ये बेस तो एक्ट करेगा ना, आराम से इजीली एक्सप्रेस ले सकता है ये, इट कैन इजीली टेक नॉन न्यूक्लियो होता है। व्हाई इट इज नॉन न्यूक्लियोफिलिक? ड्यू टू दिस बल्की ग्रुप, दो आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप जुड़े इसके साथ, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े, ये और ये, ठीक है। तो इजीली क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता है उस पे ये इजीली अप्रोच नहीं कर पाता, बिकॉज ये क्या है, बल्की ग्रुप्स ऐड है। ड्यू टू बल्की ग्रुप्स, ड्यू टू टू आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस नाइट्रोजन माइनस मींस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है एलडीए में जो N माइनस है, इट इज नॉट एबल टू अप्रोच इलेक्ट्रोफाइल, सो इट इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक, बट ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऑब्वियसली अगर आप इसको H+ दोगे तो आराम से H+ ले लेगा ये, तो स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे। सो एलडीए इज एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाई इट इज नॉन न्यूक्लियोफिलिक? Why it is not nucleophilic? Because it is having two bulky isopropyl group, or you can say because of crowding it does not behave as a nucleophile. You have to remember LDA due to crowding doesn't behave as a nucleophile. ठीक है, इसको लिख लो आप लोग और स्टार लगा लो। एलडीए को कभी भी आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करना, इट ऑलवेज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। कहीं भी आपको एलडीए दिख जाए रिएजेंट्स में, आपको क्या करना है उसका एसिड बेस रिएक्शन, क्या करना है उसका एसिड बेस, वो एज ए बेस एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। एलडीए क्लियर है? एलडीए इज योर नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर्स में और आपको एलडीए में कोई इश्यू है तो पूछ लो। एनी डाउट? हम लोग आगे प्रोसीड करें। Yes. May I proceed further now? Yes, ma'am. Clear? Everything clear? Okay. अब देखो कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं which both as इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करती है as well as न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग वो स्पीसीज पर, हमने इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ लिए, न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ लिए, अब हम वो स्पीसीज करेंगे जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करती है और एज ए न्यूक्लियोफाइल बोथ। एग्जांपल हेलोजन्स जो होते हैं दे इलेक्ट्रोफाइल आल्सो, दे विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करेंगे? देखो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू लो लाइन सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली पेयर है, लोन पेयर है ना हेलोजन के पास, तो ये ऑब्वियसली उसको इजीली डोनेट कर सकते हैं, सो दे विल बिहेव। इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू हैविंग लो लाइन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो हेलोजन्स जो होते हैं दे विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज दे विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, आपने कैसा कंडीशन लिया, मींस देखो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट आपने कैसा लिया है, भाविन 1026 पे आप ज्वाइन कर रहे हो, ओके। तो हेलोजन्स जो होते हैं, हेलोजन्स बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। जैसे आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, कि इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल व्हाई इट इज बिहेव ड्यू टू लो लाइन सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है हेलोजन है, वो लो
एम्प्टी होता है, सो इट कैन इजीली टेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट? तो इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल है, और ड्यू टू लॉन पेयर इट कैन आल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट? सेकंड देखो एग्जांपल, second example of both electrophile and nucleophile, second example is carbonyl compounds. तो carbonyl compounds होते हैं, carbonyl compounds, they will also behave as electrophile and nucleophile. How? In their keto form में keto form and enol form, these are tautomer of each other. Okay. Keto form and enol form. Right. Keto form means keto form will behave as, जो कीटो फॉर्म होती है वो कैसे बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह. इनोल फॉर्म में इट विल बिहेव एज ए, ठीक है, इनोल फॉर्म विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल. कैसे बिहेव करेंगे ये? इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एल्डोल कंडेंसेशन. बेस्ट एग्जांपल इज एल्डोल कंडेंसेशन. देखो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? you are having acetaldehyde CH3CH, ठीक है, CH3CH, CH3CH, two molecules of CH3CH will react in the presence of acidic medium, ठीक है. अब देखो in presence of H plus, देखो acidic media में in presence of acidic media this H plus is also a electrophile, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है. और यहाँ पर भी आपको मैंने आपको क्या बताया, कार्बोनिल्स किसने बताया था? मैंने क्या इलेक्ट्रोफाइल में बताया था ना, बिकॉज ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो दिस इज आल्सो है इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, दो इलेक्ट्रोफाइल है. रिएक्शन कैसी होंगी? एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल तो होना ही चाहिए ना, ठीक है. तो व्हाट सबसे पहले क्या होता है? ये जो कीटो फॉर्म होता है दिस कन्वर्ट्स टू इट्स इनोल फॉर्म. कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है हमेशा, ठीक है. इसका कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कैसे बनाते हैं? देखो CH3 का एक प्रोटॉन, दिस वन, ये जो H है ये CH2H, दिस विल शिफ्ट हियर एंड दिस विल शिफ्ट हियर, तो ये इसकी इनोलिक फॉर्म होगी CH2COH, ठीक है. ये इसका कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म. दिस इज योर कीटो इनोल, ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म. तो कीटो फॉर्म में कार्बोनिल कैसे बिहेव करता है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल. और इनोलिक फॉर्म में इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. क्लियर है? इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल. कैसे बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल? ये OH का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, ओके. देखो इनोल कैसे बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ? CH2 डबल बॉन्ड C, ये OH, राइट. दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड हियर, और ये आपका दिख गया ना ये डबल बॉन्ड सिमिलर एटम्स, तो ये एज ए बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल. ये कहाँ अटैक करेंगे? आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल था एसिटाल्डिहाइड उस पे अटैक करेंगे, ठीक है, इस वाले कार्बन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की बिहेव कर रहा है. तो दिस इज योर इनोलिक फॉर्म एंड दिस इज योर कीटो फॉर्म. तो कीटो फॉर्म में कार्बोनिल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इनोलिक फॉर्म में बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट. ये एल्डोल कंडेंसेशन में जो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो हम लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन में. तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्यों? क्योंकि एक जो फॉर्म होती है उसकी एक कीटो फॉर्म में एक्ट करता है कार्बोनिल, एक कार्बोनिल आपकी इनोलिक फॉर्म में एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है एंड H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड और ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है, राइट. कार्बोनिल कंपाउंड क्लियर है? इन कीटो फॉर्म कार्बोनिल्स बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एंड देयर इनोल फॉर्म दे बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल. क्लियर है? नेक्स्ट चलें आगे. यस, नेक्स्ट चलें. Yes, ma'am. Okay, next, third, cyanide. Cyanides also behave as electrophile as well as nucleophile. देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बिहेव करेगा? देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, राइट. ऑब्वियसली इट विल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू दिस मल्टीपल बॉन्ड, राइट. लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है ना, लोन पेयर, ये लोन पेयर है. सो ड्यू टू दिस लोन पेयर इट आल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल. ड्यू टू दिस मल्टीपल बॉन्ड साइनाइड कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है, कैसे एक्ट करेगा? बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है.
so it will behave as electrophile. But there is also lone pair of nitrogen, so it can also behave as a nucleophile. Okay, so due to multiple bond, cyanides act as electrophile, and due to lone pair of nitrogen, it can also behave as a nucleophile. Right? Clear है? Yes. Clear है? May I proceed further? Yes, ma'am. Okay. Next स्पीशीज, 3 स्पीशीज हमने पढ़ ली, हेलोजेंस, कार्बोनिल कंपाउंड्स, थर्ड मैंने आपको बताया साइनाइड, फोर्थ देखो, फोर्थ जैसे हमने कार्बोनिल पढ़ा है, सिमिलरली देखो कुछ नहीं करना है, ये मेरा कोई कार्बोनिल है, दिस इज माय कार्बोनिल, ठीक है, आर लगा देती हूँ, इसमें भी कीटो, इसमें भी एल्डिहाइड, व्हाटएवर, ये कीटो ग्रुप है, मींस ये कार्बोनिल है, और ये मैंने इसकी क्या बना दी, मैंने इसकी इनोल फॉर्म बना दी, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे CH3 लिख देती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, यहाँ पे CH3 है, CH3 एंड दिस इज CH2, राइट। अब देखो अगर मैं इफ आई रिप्लेस दिस ऑक्सीजन विद NH, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं NH से, this oxygen is replaced with NH. Similarly, इस वाले ऑक्सीजन को मैं रिप्लेस कर दूं NH, ठीक है, NH। तो ये कार्बोनिल कैसे बिहेव कर, इसको हम क्या बोलते हैं, इमीन, दिस इज नोन एज इमीन। कुछ नहीं किया, कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन था उसको NH से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, NH बॉन्ड से NH, राइट। तो इमीनिक हो गया, इट विल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कार्बोनिल कर रहा था वैसे ये एक्ट करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोडेंसिटी ज्यादा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो इट विल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। यहीं पे सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, NH2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसको बोलते हैं इनामीन। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, कीटो इनोल का क्या बना दिया, इनामीन, और कीटो का क्या बना दिया हमने, इमीन से। कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया है NH2 और NH ग्रुप से, राइट। तो नाइट्रोजन क्या है आपका, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर, राइट। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव शिफ्ट होगी और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो इनामीन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड योर इमीन एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? तो फोर्थ एग्जांपल हमने पढ़ा, इमीन और ये टॉटोमर एक दूसरे के, इमीन एंड इनामीन आर टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ ईच अदर। इमीन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इनामीन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? कुछ नहीं करना है आपको, देखो मैंने क्या किया, CH3CHO लिए, CH3CHO को मैंने NH2 के साथ रिएक्शन कर ली, NH2 या बोलो या एमोनिया बोलो तो आपको ये मिल जाए, ठीक है। ऑलवेज जब भी कोई एल्डिहाइड ग्रुप होता है, whenever there is aldehyde group, whenever it reacts with any amine, and अमोनिया ले लो या कोई भी अमीन ले लो, R लिख देती हूँ मैं, आप अमोनिया ले सकते हो, अल्काइल अमीन ले सकते हो। सबसे पहले यू हैव टू डू शिफ्ट बेस कंडेंसेशन, CHO ग्रुप रिमूव करना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH, जो कि क्या होता है, इमीन, which behaves as a electrophile, राइट। और अगर इसमें हम टोटोमेर करा दें तो इट विल बिहेव एज ए इनामीन व्हिच एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? इमीन इनामीन कंसेप्ट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। इमीन जो होता है आपके डेली आप लोग लैब में भी करते हो इस तरह का शिफ्ट बेस कंडेंसेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमीन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनामीन, राइट। ये बेसिकली आपसे वाइवा में पूछते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर? आपने लिख लिया सब? Yes, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट, गुड। अब हम लोग एक क्लास इसमें पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल में, हम लोग पढ़ते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेट सुना है नाम? एम्बीडेंटेट, व्हाट इज एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, बोलो भाई। एम्बीडेंटेट, यस, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल? मैंने आपको पहले इलेक्ट्रोफाइल बताए, then मैंने आपको I told you about nucleophile, then I told you about species which behave as both electrophile and which behave as both
इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. लास्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल. हम लोग पढ़ते हैं जनरली. व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? एनीवन? मैम कोई भी स्पीसीज होती है वो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करती है, इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, उसे हम एम्बिडेंटेड कहते हैं. व्हाट? यस, क्या बोला आपने? कोई स्पीसीज होती है जो न्यूक्लियोफाइल और एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करती है, उसे हम एम्बिडेंटेड वो तो कहते मैंने हैं. आपको बता दिया ना. वो तो मैंने आपको बता दिया. एम्बिडेंटेड का जो बेसिक डेफिनेशन है वो सही नहीं बताई आपने. यस, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? Nucleophile having two nucleophilic site. न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक साइट. ठीक है, थोड़ा बहुत सही है. और अंकिता पंडित? यस. न्यूक्लियोफाइल इज ए नेगेटिव चार्ज, उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज होता है रेजोनेंस थ्रू, उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब सही है. आप लोग जो डेफिनेशन बता रहे हो सही है, बट जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो नहीं बताई किसी ने. यस. और बताओ भाई. ठीक है, आपने जो अंकिता ने और प्रिया ने जो बताया है ऑलमोस्ट सही है, बट एक एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? यस. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? ट्राई करो भाई, इसको जो आता है एटलीस्ट बोलो तो सही. कुछ नहीं होगा, मैं कुछ आपको पनिशमेंट नहीं दूंगी. आप बोलो जो भी आपको आता है एम्बिडेंटेड के बारे में, जो आपको लगता होना चाहिए आप बोल सकते हो. यस. Nucleophile having at least two nucleophilic site, but same time only one nucleophilic site is used to form bond with nucleoelectrophile. हाँ, ठीक है, ठीक है, गुड. देखो इन्होंने क्या बोला, श्वेता मकवाना ने क्या बोला. देखो पहले आप लिख लो. एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियोफाइल. एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियोफाइल्स which can attack through one or more site, which can attack through one or more site, but at the same time they will form bond or attack from one site only. They will form bond or they will attack from one side only. What I am saying is, जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ. फिनोल जानते हो आप लोग? फिनोल सब जानते हो फिनोल को. ठीक है, फिनोल है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस O माइनस. फिनॉक्साइड आयन हम इसको बोलते हैं. फिनॉक्साइड आयन क्या है? ये फिनॉक्साइड है. अब देखो मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ. इसको मैं हटा देती हूँ. राइट, दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन. राइट, ये फिनॉक्साइड आयन है. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, ऑक्सीजन वाली है यहाँ. राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ गया. दिस इज डबल बॉन्ड. तो देखो जो फिनॉक्साइड आयन है, फर्स्ट एग्जांपल मैं बता रही हूँ एम्बिडेंटेड की. फिनॉक्साइड आयन का अगर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नाउ इफ इट इज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम O माइनस, इसकी साइड क्या है डोनेशन की O माइनस. अगर ये रेजोनेंस के बाद अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल जो बिहेव कर रहा है, नाउ इट इज बिहेविंग थ्रू C माइनस. ठीक है, ये अटैक करेगा किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे, C माइनस अटैक करेगा. यहाँ पे जो O माइनस था, ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करेगा. मीन्स व्हाट डज इट मीन? मीन्स ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इट कैन अटैक थ्रू वन और मोर साइड. इसके अंदर दो साइड, एक ऑक्सीजन है एक कार्बन है, तो दोनों साइड से कंपाउंड एक ही है, कंपाउंड फिनॉक्साइड ही है, बट इट कैन अटैक थ्रू ऑक्सीजन ऑल्सो
or it can attack through carbon also. So this behavior is known as ambidentate nucleophile. Ambidentate nucleophiles are the nucleophiles which can attack through one or more site. एक साइट या एक से ज्यादा साइट से अटैक कर सकते हैं, but they will form bond. ऐसा नहीं होगा कभी भी। आपने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, आप मान लो H जोड़ रही हूँ मैं, H प्लस ले लिया मैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो ये OH बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी जुड़ जाए O- पे भी और C- पे भी जुड़ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एट एक टाइम पे एक ही आपका बॉन्ड बनेगा, या तो O- बनाएगा या C- बनाएगा, ठीक है। तो हमने यही लिखा, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आर द न्यूक्लियोफाइल व्हिच कैन अटैक थ्रू वन और मोर साइट, ठीक है, एक या एक से ज्यादा साइट से अटैक कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम एक टाइम पे दे विल फॉर्म बॉन्ड और दे विल अटैक फ्रॉम वन पोजीशन ओनली। या तो O- से अटैक करेगा या फिर C- से अटैक करेगा। ऑब्वियस, अगर O- है तो C- नहीं, अगर C- है तो O- नहीं, राइट। या तो O- से बॉन्ड बनाएगा या फिर वो C- से बॉन्ड बनाएगा, राइट। क्लियर है भाई? क्लियर है एम्बिडेंटेड? और एग्जांपल दे देती हूँ, देखो और एग्जांपल दे देती हूँ। सेकंड एग्जांपल देखो आपका साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ये जो साइनाइड आयन है आपका HCN जो होता है ना, HCN, ठीक है, उससे साइनाइड बनता है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, राइट। तो Cn- जो है, अगर ये C- ये अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी C- से दिखा सकता है और अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी नाइट्रोजन से भी दिखा सकता है। तो इसके अंदर दो साइट होगी ना, कार्बन हो गई न्यूक्लियोफिलिक साइट और एक क्या हो गई आपकी नाइट्रोजन। तो देयर आर टू साइट्स, कार्बन एंड नाइट्रोजन, बट एक बार या तो C से अटैक करेगा ये, या फिर एक बार ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा, किस पे? इलेक्ट्रोफिल, ठीक है। तो देयर आर टू साइट्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, वन इज कार्बन माइनस एंड वन इज नाइट्रोजन, राइट। सेकंड एग्जांपल हो गया साइनाइड। थर्ड एग्जांपल देखो इनोलेट आयन, जैसे आपका इनोलेट आयन होता है CH2CHO, ठीक है, और इसका टोटोमेरिक फॉर्म बना दो CH2 डबल बॉन्ड COH, राइट। इसमें ये कैसे अटैक करेगा? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये O से और ये O-, इसमें कौन जो आपकी साइट है न्यूक्लियोफिलिक साइट, वो क्या है? O-, और इसमें जो आपकी साइट है वो क्या है? C-। तो कंपाउंड सेम है, न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, बट एक बार अटैकिंग स्पीसीज आपकी O- है, एक बार आपकी अटैकिंग स्पीसीज क्या है? C-। मींस एक जो कंपाउंड है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास दो साइट है जिससे वो अपना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखा सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है भाई? सिमिलरली NO2-, ठीक है, ये आप इनके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इससे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखा सकता है, और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके थ्रू भी ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है ना दोनों। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, तो दो साइट होगी जिससे ये अपना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखा सकता है। सो NO2- इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स, फिनॉक्साइड आयन है, साइनाइड आयन है, NO2- है, ठीक है, इनोलेट आयन है आपका, राइट। और जो इसकी रेडियो सिलेक्टिविटी, इसको बोलते हैं रेडियो सिलेक्टिविटी, रेडियो आइसोमर्स बोलते हैं। जब आपकी साइट डिफरेंट है, आपकी जो डोनेशन की जो साइट है वो डिफरेंट होती है, उससे जो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं उसको बोलते हैं रेडियो सिलेक्टिव, ठीक है। तो जो रेडियो सिलेक्टिव होती है, रेडियो मींस पोजीशन टाइप, ठीक है, पोजीशन आइसोमर बन रहे हैं हमारे, तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय योर सॉल्वेंट। आपका जो सॉल्वेंट होता है ना, वो डिटरमाइन करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। बस अभी आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स। क्लियर है भाई? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्लियर है भाई सबको? यस मैम। जैसे एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो मैं कल देख रही थी, एसिटाइल एसीटोन होता नहीं, एसिटाइल ग्रुप और ये एसीटोन, ठीक है, ये एसिटाइल एसीटोन है, कुछ नहीं, एसिटाइल एसीटोन, पहले एसीटोन ग्रुप बनाओ, एसीटोन बनाया आपने, एसीटोन हो गया। इसका जो CH3 है उसको रिप्लेस कर दिया मैंने, किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? आपके एसिटाइल ग्रुप से, ठीक है। इसका जो CH3, देखो CH3 है, एक सेकंड, ये CH3 का एक H को अगर मैं इस CH3 के एक H को मैं
किससे रिप्लेस कर दूं? एसिटाइल ग्रुप से, तो यू विल गेट एसिटाइल एसिटोन। ठीक है, ये CH2 था, CH3 था पहले, इसका एक H रिप्लेस करके मैंने क्या जोड़ दिया? एसिटाइल ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटाइल एसिटाइल, दिस इज योर एसिटाइल ग्रुप, और ये आपका क्या है? दिस होल इज योर एसीटोन, एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। तो एसिटाइल एसीटोन दिस विल आल्सो बिहेव एज ए, अगर मैं इसका माइनस लेती हूँ, एसिटाइल एसीटोन का मैं नेगेटिव ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे CH2 माइनस, CH माइनस आएगा, CH माइनस। अगर मैं इसका आयन ले रही हूँ, एसीटेट, एसिटाइल एसीटोनेट आयन अगर मैं लेती हूँ, दिस विल आल्सो बिहेव एज ए एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, दिस विल आल्सो बिहेव एज ए एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। व्हाई? देखो CH माइनस है, ऑब्वियसली यहाँ से भी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखा सकता है अपना, और ये रेजोनेंस में है O माइनस, तो O माइनस के थ्रू भी अपना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखा सकता है। तो देयर आर टू साइड्स, C माइनस एंड O माइनस, सो इट विल बिहेव एज ए एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो एसिटाइल एसीटोन भी आपको किसका एग्जांपल हो गया? किसका एग्जांपल हो गया आपका? ये एम्बिडेंटेट, राइट? एक तरह से इनोलिक फॉर्म ही है, कीटो इनोल फॉर्म। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसिटाइल एसीटोन का नेचर क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। आप मोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक कर देंगे, बट न्यूक्लियोफिलिक इज आपका सही है, बट अगर इफ इन योर ऑप्शन देयर इज एम्बिडेंटेट ऑप्शन इज देयर, यू विल करेक्ट इट एज एम्बिडेंटेट, करेक्ट ऑप्शन विल बी एम्बिडेंटेट, राइट? क्लियर है? क्लियर है भाई? एवरीथिंग इज क्लियर? आगे प्रोसीड करें हम लोग? यस मैम। तो मोस्टली हमने जो पार्ट था, हमने अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? एक्स वाई प्लस जेड से हमने एक्स बनाया था, कल बनाया था ना हमने, सब लोगों ने बनाया था, मैंने क्या बनाया था, आपने भी बनाया था सबने। अभी तो हम लोग इस रिएजेंट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? रिएजेंट की। ठीक है, एक सबस्ट्रेट होता है, इसमें एक रिएजेंट होता है। कल मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट कौन होता है, रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है, सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है। ये रिएजेंट की हमने टाइप्स पढ़े थे। रिएजेंट एज इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है। इसकी हमने पूरी क्लास करी थी कल, आज भी होगी होगी। तो इस जेड के बारे में तो बोल दिया हमने, ठीक है। अभी एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई। अब ये जो एक्स वाई जेड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक्स जेड बनाएगा प्लस वाई माइनस, कुछ भी बोल दो आप लोग, ठीक है, वाई बोल दो, वाई माइनस बोल दो, या वाई एच बोल दो, वट उससे हमारा कोई मीनिंग नहीं है। मेन हमें क्या पढ़ना है, अब जो ये रिएक्शन हो रही है, एक्स वाई रिएक्ट करके जेड के साथ जो रिएक्ट कर रहा है, तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म किसे बोलते हैं? व्हाट यू मीन बाय रिएक्शन मैकेनिज्म? रिएक्शन मैकेनिज्म मीन्स स्टेप वाइज जो ये जो एक्स वाई जेड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस पाथवे से रिएक्ट कर रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, और कैसे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उस स्टडी को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? इट इज अ डिटेल एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ पाथवे, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ, stepwise description of path, stepwise description of path by which reactants are converted to products। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, किस पाथ से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। राइट, इंटरमीडिएट बन रहा है, नहीं बन रहा है, कौन स्टेबल है, कौन नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है कि इंटरमीडिएट बन रहा है, वो जो स्टडी हम लोग करते हैं दैट इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिकली एक रिएक्टेंट होता है आपका, वन इज योर रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट है आपका, ठीक है। रिएक्टेंट के बाद आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ आपका इंटरमीडिएट बनता है, राइट, और लास्ट में आपका क्या बनता है? ठीक है, तो इस स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आपके रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ path by which reactants are converted to product is known as reaction mechanism। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप्स ऑफ डिफरेंट, देयर आर स्टेप्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, कौन सी बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो कैसा क्लीवेज होगा, ठीक है। थर्ड हम लोग इसे पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ, ये स्टेप्स है मैकेनिज्म के, ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, राइट। लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन। ये बेसिक आपकी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लियर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन से इफेक्ट्स पढ़ते हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं, मेसोमेरिक पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हम लोग एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज देखो, टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का होता है, होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं अपनी रिएक्शन में, जैसे कार्बोकटाइन है, कार्ब अनाइन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, इलिड है, ठीक है। तो ये आपके क्या होगा, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, राइट। ये हमारे एडिशन रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं किसके, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज किस टाइप का होता है, होमोलाइटिक कौन करता है, हेटेरोलाइटिक कौन करता है। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ेंगे हम लोग। इंटरमीडिएट क्या होंगे, कार्बोकटाइन है, कार्बोनाइन है, फिर जो भी डिफरेंट इंटरमीडिएट है इस दुनिया में, कार्बीन, नाइट्रीन, सब इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप लास्ट में हम पढ़ते हैं, हमें सब ये पता लग जाएगा तो टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। कितने टाइप की रिएक्शन होती है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, राइट, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया भी है इसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा कैसे कैसे बताऊंगी, थोड़ा सा आपको, मतलब मैं ये सोच के आपको बताऊं कि आप लोगों को आता है ये, बस मैं एक आपका जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा फर्निश करूंगी, बिकॉज ये 10th 11th की चीजें इतनी तो आपको आती होंगी, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स, one is permanent displacement of electron, second is your temporary displacement of electron. Electronic displacement is of 2 types, temporary and permanent, right। तो permanent का मतलब क्या होता है, permanent displacement होता है, it occurs on its own, ये अपने आप होता है, अपने आप, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं करते, it occurs on its own, अपने आप होता है। सेकंड देखो, सेकंड इज it takes place even in absence of reagent। आपने reagent डाला हो नहीं डाला उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आपका अगर ये स्पीसीज है तो आपका क्या हो जाएगा उसमें, अगर इस टाइप की, अभी बताऊंगी आगे, अगर आपका परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा तो अपने आप हो जाएगा, उसमें कुछ भी आपको बाहर से ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो इसके, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड योर इंडक्टिव, ये सब क्या है आपके परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट अपने आप होता है। रेजोनेंस देखो, जैसे फॉर एग्जांपल फिनोल है, ये फिनोल है, इसमें आपको पता है रेजोनेंस दिखाएगा, ये ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आपका डिलोकलाइज होगा पूरी रिंग में, तो ये अपने आप हो रहा है, हमने कुछ बाहर से ऐड तो नहीं किया है, ऑक्सीजन, ये फिनोल अपने आप अंदर से, सिस्टम के अंदर से हो रहा है, तो इट अकर्स ऑन इट्स ओन, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिएजेंट। लेकिन टेम्पररी क्या होता है, देखो टेम्पररी जो इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाले, टेम्पररी इफेक्ट मींस जो अपने आप नहीं होते, which do not occur on its own, do not occur on its own, अपने आप नहीं होते, do not occur on its own, अपने आप नहीं होंगे। उसके अंदर क्या होता है, हमें कोई, जब हम लोग रिएजेंट डालेंगे ना उसमें, it takes place in presence of, जब आपने रिएजेंट डाला तब तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जैसे आपने रिएजेंट हटा दिया वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पररी इफेक्ट। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अभी मैं बताऊंगी सब, आपको सब बताऊंगी। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे आपने रिएजेंट डाला, आपने कोई भी रिएजेंट डाला, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे आपने रिएजेंट को हटा दिया वो आपके इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आ गए,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट। इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है इसे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट से, फर्स्ट क्वेश्चन इज रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, दीज आर परमानेंट इफेक्ट, दीज अकर ऑन देयर ओन, अपने आप होते हैं। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है प्लस ई माइनस ई जो हम लोग करते हैं, वो टेम्पररी होता है, इट डजंट अकर ऑन इट्स ओन, और इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होगा तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये सब आपके अच्छे से पढ़े हुए, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आपने कोई भी ये मेरी कोई भी स्पीशीज ए डबल बॉन्ड ली, इसमें अब मैंने रिएजेंट डाला, कोई भी रिएजेंट डाला, रिएजेंट में आपको बता चुकी हूँ अभी दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उसमें मैं नहीं जाऊंगी दोबारा से। तो क्या होगा, रिएजेंट डाला तो ये क्या होगी, स्पीशीज हमारी चार्ज होगी, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, और ए माइनस और बी प्लस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आपने रिएजेंट को रिमूव किया, जैसे मैंने रिएजेंट को रिमूव कर दिया, रिएजेंट इज रिमूव, जैसे मैंने रिएजेंट को रिमूव किया, वापस क्या आ जाएगा, ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, complete transfer of pi electron in presence of reagent, ठीक है, complete transfer of pi electrons in reagent, ठीक है। ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, मैंने बता दिया आपको, right? If reagent is removed from the reaction mixture, then system will return to its state. क्लियर है भाई? आप देखो एग्जांपल्स देखो इसके, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टू टाइप्स का होता है, प्लस ई, इसी में हम लोग एग्जांपल देखेंगे, प्लस ई एंड माइनस, प्लस ई एंड माइनस। देखो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है इट टुवर्ड्स द रिएजेंट, रिएजेंट की साइड अगर होता है, देखो ये आपका एल्कीन है, दिस इज माय एल्कीन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो यहाँ शिफ्ट हो गई, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। फिर आपका रिएजेंट जो है, रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना, ऑब्वियसली एल्कीन है, तो रिएजेंट जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट डायरेक्शन, उसी साइड आपका क्या अटैक कर रहा है, रिएजेंट। दिस इज योर प्लस ई, ये क्या है आप प्लस माइनस ई, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेस यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द रिएजेंट, जहां पे रिएजेंट ने अटैक किया वहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बोनिल है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपके वो इस साइड होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहाँ पे। तो जो आपकी डायरेक्शन थी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की, वो तो इस साइड थी, बट अटैक कर रहा है पीछे, दैट मींस दिस इज माइनस, तो ये आपका कैसा हो गया, माइनस। मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द रिएजेंट, दिस इज योर प्लस ई, दिस पाई इलेक्ट्रॉन takes place away from the reagent, ये reagent यहाँ अटैक कर रहा है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हमारी दूसरी साइड से माइनस की, ठीक है, क्लियर है भाई? अगर मैं इसमें अपनी पोजीशन पे लाऊं, मतलब मैं रिएजेंट हटा दूं, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को वापस हटा दूं, तो मेरा वापस क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, क्या बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सॉरी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को हटा दूं, तो वापस मेरा क्या आ जाएगा, कार्बोनिल, राइट। टेम्पररी इफेक्ट इन द, जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल डाला वैसे क्या हो गया, हमारा जो हमारी डबल बॉन्ड थी उस पे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। प्लस ही मींस ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिएजेंट, और माइनस ही मतलब ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द रिएजेंट, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, ठीक है। प्लस ही माइनस ही, ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, सिंपल, ठीक है, क्लियर है भाई? ये प्लस ही माइनस ही, प्लस ही माइनस ही, क्लियर है आपको? प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है सबको, यस और नो? यस मैम। ओके, नेक्स्ट
तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगा? तो ये करता है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसका वाई स्पीसीज है, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी साइड क्या होगी? शिफ्ट हो जाएगी। अगर वाई की ज्यादा है तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगर एक्स की ज्यादा आपका क्या होगा? एक्स की साइड शिफ्ट हो जाएगी, जिसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको थोड़ा सा वो बता देती हूँ, जैसे कि आपका CH2 डबल NR2 है, ठीक है। इसका कौन सा इफेक्ट रहेगा? बताओ भाई, इसका कौन सा इफेक्ट? प्लस ई लगेगा कि माइनस ई लगेगा? बताओ NR2 का प्लस आर लगेगा कि माइनस आर लगेगा? ये बता दो। आपको डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ शिफ्ट होंगे कि यहाँ शिफ्ट होंगे, आपको बताना है मुझे कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। किस पे डिपेंड करेगा? जो भी आपकी एल्कीन है, जो भी आपकी एल्कीन होती है उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा है जी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों की सेम है, कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑलमोस्ट सेम है। तो आपका एक ग्रुप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ शिफ्ट करनी है कि यहाँ शिफ्ट करनी है। अगर इसकी जी जो ग्रुप है, अगर ये विड्रॉइंग, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी यहाँ शिफ्ट होगी। अगर ये डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी यहाँ शिफ्ट होगी। फॉर एग्जांपल ये NR2 है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, ऑब्वियसली हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस साइड शिफ्ट। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 लगा देती हूँ अगर मैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड, क्योंकि इसका माइनस आर है, माइनस आई है, ठीक है। क्लियर हुई? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताने की जरूरत है आपको? बोलो भाई, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया? यस। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो देखना है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, तो आप क्या करो, जो ग्रुप अटैच है उसका इफेक्ट देखो। उसका क्या देखेंगे? ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे हम लोग। क्लियर? क्लियर है भाई? आगे चले। यस और नो? यस मैम। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट मुझे आपको बताना, देखो हेलोजेंस। हेलोजेंस का बता देते हैं आपको थोड़ा सा। हेलोजेंस जो होते हैं ना, हर जगह एक्सेप्शन में हेलोजेंस पढ़ते हैं हम लोग, पता नहीं क्यों पीरियोडिक टेबल में है, सब जो एक्सेप्शन हम लोग कहीं भी देखें वहां पर हेलोजेंस आ जाते हैं, है ना। देखो हेलोजेंस में एक्सेप्शन होता है, हेलो अरीन्स जो होते हैं, हेलो अरीन्स, जैसे कि ये हेलो अरीन बनाया मैंने एक्स, कोई भी हेलोजन ले लो आप, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोम। देखो हेलोजेंस जो होते हैं, हेलोजेंस जो होते हैं, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, दे आर, और इसको लिख लो आप लोग, दे आर हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कैसे होंगे? ड्यू टू द लोन पेयर, लोन पेयर की जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे ना, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव शिफ्ट होगी, फिर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे एंड पैरा पे, ठीक है। तो हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग मींस उनका जो आपका जो आप इसका जो डोनेशन इफेक्ट है वो क्या दिखाओगे आप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिव। बट अगर आप इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, मतलब इसका जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो होता है हेलोजेंस का, वो आप किससे दिखाते हैं? उनके प्लस आर। प्लस आर क्यों दिखा रहे हैं? ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर की जैसे क्या दिखा रहा है यहाँ पे? प्लस आर दिखा रहा है, नहीं प्लस आर, ठीक है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज कंट्रोल्ड बाय प्लस आर। लेकिन जो इनकी रिएक्टिविटी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है कि कौन सा आपका रिएक्टिव ज्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी जो होती है इनकी कंट्रोल होती है, रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि देखो हेलोजन आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इसको माइनस आई भी लगेगा ना, माइनस आई लगेगा ना, माइनस आई, तो इसका माइनस आई भी लगता है, प्लस आर भी लगता है। तो
तो आपको क्या देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस से क्वेश्चन हो रहा है तो आप इसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस देखोगे। अगर आपका रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा तो माइनस आई देखो। अब इसमें क्या होता है, देखो हेलोजेंस में एक्सेप्शन क्या होता है, हेलोजेंस में एक्सेप्शन क्या होता है, देखो फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन इसमें तो प्लस आर ज्यादा होता है, किससे, माइनस आई से। और जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब में क्या होता है, आपका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग होता है, किससे, प्लस आर से। अगर आपका फ्लोरो ग्रुप जुड़ा है उसमें रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई। फॉर क्लोरो ब्रोमो आयोडो इनका माइनस आई डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कम्पेयर टू द प्लस आई। ये आपको एक्सेप्शन केस है, इसको लिख के और बॉक्स में ऐड कर लो, बॉक्स में इसको डालो कि एक्सेप्शन केस है, आपको याद रखना है। हेलोजेंस का प्लस आर इफेक्ट होता है, मींस उनका जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, मतलब कहीं पे आपको ऐसे जोड़ रखा है, कहीं भी जोड़ रखा है, तो आप इसका कौन सा ग्रुप इफेक्ट लाओगे, प्लस आर इफेक्ट लाओगे, किसका, हेलोजन का, राइट। लेकिन आपको रिएक्टिविटी अगर कहीं भी पूछी है तो आप उसका क्या लगाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपनी तरफ खींचेगा तो माइनस आई लगेगा, राइट। ठीक है, क्लियर है भाई। हेलोजेंस वाला आपको एक्सेप्शन है, ये लिख लो हमेशा याद रखना आपको हेलोजेंस वाला। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग करते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, जब हम लोग इस पे आ ही गए हेलोजेंस पे तो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये आपका एरोमेटिक कोई भी सिस्टम है, ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपको किस तरह बिहेव करेगा, ऑब्वियसली एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इसने बिहेव किया, एक सेकंड हटा दीजिए, चलो ठीक है चलेगा। इसने कैसे बिहेव किया है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इसने ऐसे बिहेव किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आ गया आपका H2। आगे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया इसमें, आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है, ऐसे बना लेना, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ शिफ्ट होंगी, आप इसकी रेजोनेंस बना लेना, एक्सेट्रा ले देते, ठीक है। ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो स्टेप होता है ना अटैक, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये होता है हमारा स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज योर स्लो स्टेप एंड योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फ ब्रोमिनेशन में जैसे Br+ होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन में NO2 है, सल्फोनेशन में SO3 है, NO2+ है, ठीक है, SO3 है आपका। तो ये सब जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, किसकी, E+ के इलेक्ट्रोफाइल। इसमें जो बेंजीन जो एरोमेटिक जो भी पार्ट है वो आपको कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल, उस पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैच होता है, उसकी रेजोनेटिंग स्टेप। जो अटैक जो होता है इलेक्ट्रोफाइल का, दैट इज ए स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये मैं आपको बता दूं। मीन्स क्या हुआ, अगर आपका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर कोई भी कंपाउंड अगर न्यूक्लियोफिलिक को ज्यादा है तो उसकी रेट उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या कह रही हूँ, देखो मैं क्या कह रही हूँ, जैसे कि ये फिनोल है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ, आपको बताना रेट ऑफ ARSE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक फिनोल है आपका, एक आपका NH2 है, मीन्स एक आपका एनिलीन है, ठीक है, एक फिनोल है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। देखो आपको क्वेश्चन है ये, यू हैव टू टेल रेट ऑफ ARSE, रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वन इज फिनोल, वन इज फिनोल, राइट, सेकेंड इज एनिलीन, एनिलीन, राइट, थर्ड इज टोलुइन, टोलुइन, और क्या है नेक्स्ट, एक बेंजीन ले लो सिंपल। आपको बताना रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो इसका आंसर, मुझे इसमें रेट ऑफ ARSE बता दो। ARSE का मैंने आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बता दिया है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे, इलेक्ट्रोफाइल। यस, अब बताओ रेट ऑफ ARSE बता दो मुझे इसका, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एग्जाम्स में, इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। यस,
Yes, anyone? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इन चारों में से? यस, एनीवन? किसी को भी नहीं आता? ट्राई तो करो भाई। क्वेश्चन तो क्लियर है सबको? आपको रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताना है। मींस इन चारों को अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है, इन चारों कंपाउंड 1 2 3 4 को इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है, मींस ये खुद क्या बिहेव करे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इनमें, ये आपको बताना है। यस, एनीवन? 1 2 3 4 और एनिलीन, फिनोल, बेंजीन एंड टोल्यूइन। एनिलीन, फिनोल, बेंजीन और टोलुइन। टोल्यूइन लास्ट में। टोलुइन का लास्ट में क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सॉरी मैडम, नहीं टोल्यूइन फर्स्ट आएगा प्लस एच इफेक्ट के कारण। मतलब मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा इसे, इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ाना पड़ेगा, अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट। और कोई इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाना पड़ेगा मुझे शायद, थोड़ा बता दूंगी कल। यस, और कोई? राइट आंसर नहीं आया मेरे पास। यस, देखो इसका राइट आंसर होगा 2 1 3 एंड 4, ये इसका आंसर। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला अभी मैंने क्या बोला आपका, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होता है। इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक पे जो अटैक होता है, ये आपका स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मींस क्या हुआ, अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हम बढ़ा देंगे, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी ही हमारी क्या होगी, इजीली रिएक्शन हो जाएगी। इतना इजीली अटैक कर सकता है ना इलेक्ट्रोफाइल पे, राइट? जितना ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, मींस जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उतनी हमारी रेट ऑफ ARSE ज्यादा होगी, उतना इजीली इलेक्ट्रोफाइल पे वो अटैक कर सकता है, राइट? तो देखो अब मैंने आपको क्या क्या दिए, तो आप लिख लो इसमें एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे जैसे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ ARSE इंक्रीजेस, रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, एरोमेटिक जो पोजीशन आपके जो कंपाउंड है उस पे आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, तो दैट मींस एरोमेटिक आपका कैसे पार्ट, एरोमेटिक जो स्पीसीज है वो कैसे एक्ट कर रही है एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो अगर आप उसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो अब देखो आपके ऑप्शंस क्या थे, देखो आपका कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है, इसमें कोई भी अगर आप डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते हो, तो इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू सिंपल, और सबसे कम किसके होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप के। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर मैं बता रही हूँ, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में ये जी जो ग्रुप है डोनेटिंग ग्रुप का, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, दिस विल बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और ये कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, वीक न्यूक्लियोफिलिक, लेस न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव करेगा। यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल, और ये बीच का इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या दिया था, मैंने आपको क्या क्या दिया था, देखो ऑप्शंस में मैंने आपको दिया था OH दिया था, NH2 दिया था, NH2। ठीक है, और क्या दिया था, मैंने टोलुइन दिया था, टोलुइन, CH3 ये दिया था, और एक सिंपल बेंजीन। अब देखो ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, ये अपने लॉन पेयर इसको शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से दे सकते हैं ना। OH इनका प्लस आर इफेक्ट है, इसको बोलते हैं प्लस आर। कल मैं आपको थोड़ा सा प्लस आर माइनस आई सब मैं बता दूंगी, इसका भी प्लस आर लगेगा। CH3 का क्या लगेगा भाई,
एक तो CH3 का लगेगा प्लस आई इफेक्ट, क्या लगेगा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव, और एक इसका लगता है प्लस एच, एक इसका कौन सा लगता है प्लस एच। तो प्लस आई यहाँ पे देखो ये प्लस आर, तो आपको पता है रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट देन हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट। आर एच आई, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्यों सबसे लोवेस्ट होता है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना वो पार्शियल शिफ्टिंग होती है, जबकि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में आप देखते हैं पूरी शिफ्टिंग होती है, इसकी होती है पूरी शिफ्टिंग। ठीक है, अब देखो OH और NH2 में प्लस आर इफेक्ट तो कॉमन हो गया, ऑब्वियसली OH और NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी CH3 से तो ज्यादा होगी, क्योंकि इनमें रेजोनेंस लग रहा है कि CH3 में रेजोनेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, तो OH और NH2 की तो ज्यादा होगी। अब इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन इजीली देगा, नाइट्रोजन देगा ना, ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन इजीली दे देगा। दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है, सेकंड सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, फिर फर्स्ट नंबर हो गया क्योंकि इसमें प्लस आर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा 3 आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है CH3 का, और फिर लास्ट में कौन हो जाएगा सिंपल बेंजीन, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा ग्रुप जो है कुछ भी एडेड नहीं है, सिंपल H है यहाँ पे। ठीक है, ये रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर है भैया आप सबको, इज इट क्लियर? ऑर्डर क्लियर हो गया आपको? थोड़ा सा कल मैं आपको रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, क्योंकि अगर आपको आता तो आप आंसर सही कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ रही है ये मैंने आपको समझा दिया, प्लस आर से बढ़ रही है कि प्लस आई से बढ़ रही है। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, इसीलिए हमारा सेकंड, और फिर रेजोनेंस फर्स्ट और सेकंड में रेजोनेंस कॉमन हो गया, फिनोल और एनिलीन में रेजोनेंस कॉमन है, बट नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इजीली दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट मींस वो अपनी इजीली दे सकता है, इजीली प्लस आर देगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो NH2 का सबसे ज्यादा हो गया न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। ठीक है, फिर OH का, फिर आपका CH3 का, फिर H। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या देखना था, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वही आपकी ARSE को बढ़ाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? If you have any doubt in today class, you can ask. अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी तो आप पूछ सकते हो। यस, क्लियर है सब? यस मैम। ओके, देन थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ा सा मैं आपको रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा बता दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।